complete your eKYC due to issues at UIDAI end. Some of the times we also would like to download our Aadhaar from UIDAI services, and we would like to link our Aadhaar, okay, on any website or any application. So this could be the error which we can get from UIDAI services. So again, on our apprenticeship portal, as we have linked API services with UIDAI. So this could be due to the API services. This could be due to the issues at UIDA and UIDA server, where candidates are not able to complete the eKYC. So simply, this is not a bug. This is not an issue. It is just services are not responding. So simply, any one can share this communication to the candidates that you are unable to complete your eKYC due to issues at UIDAI end. And if the same candidate is trying after some time, the candidate would be able to complete the eKYC. But if any candidate is frequently trying to complete the eKYC, but still the problem is not resolved, and again error is coming. So simply, some steps can be followed. Okay, if I go in Google Chrome browser, the cookies of the browser which candidate or we are using, okay, having the same information which we have put it earlier. Just suppose this is my Google Chrome browser where I'm apprenticeship india.ub.in. So I have not put it this information, okay, just now, as this information was put it by me yesterday or day before yesterday or while using the browser. So this is how cache and cookies work. So the same cache and cookies need to be paid by the candidate as well. So simply they need to press Ctrl plus H, click on create browsing data, and from selecting these options, cache and cookies data from browser will be cleared. After that, candidate to close the browser and reopen the browser. So once you do this exercise, the whole program, the whole Google Chrome browser will get refreshed. And after that, candidate need to again log into apprenticeship portal, okay, and log in as a candidate. After that, once they click on eKYC, they would be able to map the Aadhaar. They would be able to complete the eKYC. Again, candidates are saying, I have tried many times but unable to complete eKYC and getting an error. The same, the Aadhaar services are not accessible. So this is the only solution, because Aadhaar services might not down, okay, at a long duration of time. Services get also refresh after some time. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे कैंडिडेट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, जो ऑडियंस में देख पा रहा है, ITIs, AAAs, ओके, मे बी RDSGs ने ज्वाइन किया होगा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. सो अभी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमें पता चल पा रही हैं फ्रॉम कैंडिडेट्स, और जो एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट्स के बिहाफ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, या टिकटिंग टूल पे जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है. सो ये हमने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इश्यूज के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्क्रीनशॉट्स आपके पास भी शायद कैंडिडेट शेयर कर रहे होंगे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल. सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इश्यूज के बेसिस पे हमें कैंडिडेट्स को कैसे गाइड करना है. तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हमने कुछ ऐसे ही इश्यूज की एक लिस्ट बनाई है, जहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एग्जैक्टली ये एरर आता है पोर्टल पे, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे और कैंडिडेट्स को किस तरीके से गाइड करेंगे. मे बी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके लिए टिकट रेस करें, उसके बाद फिर टेक्निकल टीम उस पर कोई एक्शन ले, फिर या कोई मॉड्यूल ओनर है, जैसे जो भी मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, PTP, DBT, इस तरीके से. तो एक क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ओके, एंड ये हमने नोटिस भी किया है लास्ट कुछ हफ्तों में. तो अगर मैं पहले एरर की बात करूं, जहाँ पे आधार की सर्विसेज एक्सेसिबल नहीं है और पोर्टल आपको अकाउंट करता है कि प्लीज कुछ देर बाद ट्राई करें, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में UIDAI की सर्विसेज अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना eKYC कंप्लीट नहीं कर पाते हैं.
तो इसमें इट इज जस्ट आपको कैंडिडेट्स को इस तरह से गाइड करना है कि अभी क्योंकि सर्विसेज काम नहीं कर रही है, आप कुछ देर बाद ट्राई करना। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, किसी वेबसाइट पे अपनी आधार डिटेल्स मैप करना चाहते हैं, बट ओटीपी नहीं आता है, या ओटीपी जब हम एंटर करते हैं तो ओटीपी इनवैलिड आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है यूआईडीआई के सर्वर के जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से आते हैं। अदरवाइज एपीआई इंटीग्रेशन जो पोर्टल पे ऑलरेडी वो हमने भी चेक किया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वहां पे सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन अगर कैंडिडेट्स को जाएगा तो माइट बी कैंडिडेट्स और जल्दी अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। कि कई बार हम एक ही चीज बार बार ट्राई करते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो चीज अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसी के सिमिलर अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स आपके पास आते हैं एंड दे आर सेइंग कि हम बहुत बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी यही हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आप ब्राउजर यूज करते हैं उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, उसकी जो कैश है, उसकी जो कुकीज फाइल्स होती हैं बैकएंड पे सेव होती चली जाती हैं। इसलिए कई बार आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं या डेस्कटॉप या ब्राउजर यूज करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप सर्च नहीं भी करते हैं ऑलमोस्ट उसमें क्रिएट रहती है, मेरी आपकी पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे, या जो फाइल्स आपने या जो वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया होगा पहले उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ यूजर को या कैंडिडेट को अपने ब्राउजर की कैशे और जो हिस्ट्री फाइल से वो क्लियर करनी है ताकि उनका ब्राउजर पूरी तरह से रिफ्रेश हो सके। इसके बाद अगर वही कैंडिडेट अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे so they would be able to go ahead, they would be able to complete their profile. So इसी के अलावा again बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं बट दे आर नॉट अवेयर कि उन्होंने किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था, क्या उन्होंने पहले किस ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर किया था। तो इन केस अगर किसी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पोर्टल ये प्रॉम्प्ट करता है कि दिस मोबाइल नंबर इज टेकन, दैट मीन्स कि कैंडिडेट का मोबाइल नंबर ऑलरेडी किसी प्रोफाइल के साथ में आ गए, तो कैंडिडेट को या तो डिफरेंट मोबाइल नंबर यूज करना है या फिर अगर वो अपना प्रोफाइल रीसेट करके यूज करना चाहते हैं सेम प्रोफाइल जो उन्होंने पहले क्रिएट किया था, तो इस तरीके से कैंडिडेट जो है यूज कर सकता है अपना प्रीवियस प्रोफाइल। सो यहाँ पे ये मेंशन भी है, आई एम ट्राइंग टू रजिस्टर एज अ कैंडिडेट बट आई एम गेटिंग एन एरर दैट माय ईमेल आईडी इज टेकन। सो अगर कैंडिडेट पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो पोर्टल विल नॉट अलाउ कैंडिडेट टू यूज सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये चेक ऑलरेडी हमने लगाया होगा यहाँ पे ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर कैंडिडेट को हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना होगा नया। इनकेस उनकी ईमेल आईडी ऑलरेडी कहीं भी प्रोफाइल पे किसी भी प्रोफाइल पे मैप है, कैंडिडेट शायद दोबारा रजिस्टर उस मेल आईडी से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको उन्हें ये गाइड करना है कि बच्चे आपकी मेल आईडी आपका मोबाइल वो अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते थे। अगेन हमने उसी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। पोर्टल पे उनको ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा के देता हूँ। आई थिंक इंटरनेट इश्यूज, ठीक है, बट वी हैव द सेम इंफॉर्मेशन। या ओके ओके। सो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कैंडिडेट आप तो रीच आउट करते हैं कि कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी सॉरी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो अगेन पहले कैंडिडेट के प्रोफाइल में जाके कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर पाते थे। अभी क्या है कि जब वो लॉगिन करेंगे और जैसे उनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी के नीचे एक और बटन होगा अपडेट मोबाइल नंबर, जहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा अभी, तो उसमें और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एस्टैब्लिशमेंट लेवल पे चेंजेस हुए हैं और क्या कैंडिडेट्स लेवल पे चेंजेस हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है, ई-केवाईसी का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं, ठीक है, जो हमने इश्यूज को क्लैरिटी से देखने के लिए प्रिपेयर किए हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप मेंशन है कि कैंडिडेट लॉगिन एज ए कैंडिडेट पे क्लिक करेगा, अपनी ईमेल आईडी डालेगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट मोबाइल नंबर का। जैसे वो अपडेट मोबाइल नंबर जो स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सेंड ईमेल पे जैसे क्लिक करेंगे उनको एक ईमेल जाएगा जहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन पे जैसे वो क्लिक करेंगे वहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर गेट चेंज। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी अगर किसी कैंडिडेट को टिकट रेस पहले करना पड़ता था या कैंडिडेट्स कर रहे थे तो वो भी ऑलरेडी प्रोफाइल पे फंक्शनैलिटी है, पोर्टल पे फंक्शनैलिटी है कि वो खुद कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन कैंडिडेट अपडेट
देयर ईमेल आईडी। ओके, सो एक चीज और आपने नोटिस करी होगी कि पहले प्रोफाइल अगर किसी भी कैंडिडेट को अपना लॉगिन करना है तो वो अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड के थ्रू कर सकते थे या फिर अपने अप्रेंटिस कोड और पासवर्ड के थ्रू। नाउ थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज हुआ है ऑथेंटिसिटी और लाने के लिए कि सभी कैंडिडेट्स अपने प्रोफाइल खुद एक्सेस करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स में अवेयरनेस इंक्रीज हो। So, अब ईमेल आईडी इज अ प्राइमरी की टू लॉग इन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। अगर किसी कैंडिडेट की ईमेल आईडी मैप नहीं है तो उनको मैप करनी पड़ेगी, ठीक है, एज ईमेल आईडी इज प्राइमरी की टू लॉग इन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। नाउ ईमेल आईडी विल बी नीडेड। अब ईमेल आईडी की जरूरत है कैंडिडेट्स को। इफ यू ऑलरेडी रिमेंबर योर लॉगिन डिटेल, अगर कैंडिडेट को ऑलरेडी अपनी लॉगिन डिटेल्स पता है सो कैंडिडेट अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में जाके। इन केस अगर कोई कैंडिडेट्स नहीं कर पा रहे तो अगेन जो टिकटिंग डिटेल्स वाला प्रोसेस है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। आई विल आल्सो टेक यू थ्रू अ टिकटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल, जो अभी हम अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे हमने एम्बेड किया हुआ है और जो हम यूज भी कर रहे हैं। नाउ एक और एरर है जिसके बारे में इवन आप सबको पता भी होगा, इससे पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती भी हैं, इंडस्ट्री बहुत फेस करती है इशू। आधार नंबर कैन नॉट बी वेरीफाइड एज इट इज ऑलरेडी इन यूज। इससे पहले पोर्टल पे क्या होता था कि आपको इस एरर के साथ कैंडिडेट का अप्रेंटिस कोड और कैंडिडेट की ईमेल आईडी जिसके साथ कैंडिडेट का प्रोफाइल लिंक है उन दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती थी। अभी प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ था पहले, अगेन हमने वापस उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट क्योंकि पुराना है तो इसलिए इसमें अप्रेंटिस कोड और ईमेल आईडी आपको विजिबल नहीं है, लेकिन अभी अगर किसी भी कैंडिडेट्स का डेटाबेस इस तरीके से फिगर आउट होता है कि उस कैंडिडेट का ऑलरेडी ही आधार लिंक है जो वो लिंक कर रहे हैं किसी प्रोफाइल पे, तो पोर्टल आपको पुराने वाला ही एरर देगा कि दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी लिंक ऑलरेडी इन यूज विद दिस अप्रेंटिस कोड एंड दिस ईमेल आईडी। सो क्वेश्चन भी यही था ड्यूरिंग इन ई-केवाईसी, अगर मुझे ये एरर आता है कि ऑलरेडी लिंक्ड विद दिस ईमेल आईडी एंड अप्रेंटिस कोड, ठीक है, बट आई हैव नॉट रेज्ड माय सर। सो यहाँ पे इस तरह के केसेस में कैंडिडेट्स को दोनों पे टिकट रेज करना होगा। टिकट रेजिंग के लिए इसके बाद वी विल डिस्कस। अब बहुत शुरू में जब ई-केवाईसी रोल आउट हुआ था तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे कैंडिडेट्स जो है अपना आधार मैप नहीं कर पा रहे थे, ये ड्रॉप डाउन जो है उनको नहीं दिख रहा था। तो ये भी ऑलरेडी फिक्स हो गया है। अब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर कैंडिडेट का आधार उन किसी भी डिस्ट्रिक्ट उन किसी भी स्टेट्स में है तो वो सिंपली और बहुत इजीली अपना डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट्स मैप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा कैंडिडेट के बाद, कैंडिडेट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट है। और पहले ही जो ये इन्फॉर्मेशन है एंटर योर रिलेशनशिप, ये भी फ्रीज थी, अभी ये भी ओपन है। कैंडिडेट्स मैनुअली ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन जाके चेंज कर सकते हैं, जाके फिल कर सकते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। अब इस तरह के इश्यूज आते हैं, मान लीजिए आई एम अनएबल टू एडिट बैंक डिटेल्स। सो अगर कैंडिडेट्स को अपनी बैंक डिटेल्स एडिट करनी है तो उनको अपना प्रोफाइल का ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं ये चेक करना होगा, और ई-केवाईसी कंप्लीटेड तो ही बैंक डिटेल्स अपनी अप्रेंटिसेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठा पाएं, इसके लिए रजिस्टर्ड संस्थान अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करें और फिर बाईं तरफ स्टाइपेंड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नीचे दिए गए अटेंडेंस और स्टाइपेंड ऑप्शन पर क्लिक करें। सभी अप्रेंटिसेस के पेरोल की जानकारी के लिए एक्शन टैब पर क्लिक करें, फिर व्यू पेरोल डिटेल्स बताएं। डीबीटी के अंतर्गत एप्लीकेबल। अब ये एक मेजर चेंज है जो एस्टैब्लिशमेंट्स को डीबीटी रोल आउट होने के बाद अपने पेरोल पेज पे दिखेगा, जहाँ पे डीबीटी एप्लीकेबल की एक डीबीटी एप्लीकेबल की एक फील्ड है और हर एक कैंडिडेट के अगेंस्ट यस नो फिल करने का ऑप्शन आएगा। नाउ शुरू में एस्टैब्लिशमेंट्स को वन टाइम जो उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें डीबीटी एप्लीकेबल एज यस या एज नो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। फ्रॉम गोइंग ऑनवर्ड्स जो फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे इनपुट देंगे, उसके बाद बाय डिफॉल्ट कैंडिडेट्स के लिए यस रहेगा फॉर द अपकमिंग पेरोल्स। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर डीबीटी रोल आउट होता है
दैट मीन्स मार्च पेरोल के कैंडिडेट्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट्स को एक बार ऑप्शन मिलेगा ड्यूटी एप्लीकेबल ये सिलेक्ट करने का। अगेन उसके बाद जो अप्रैल और आगे के पेरोल्स होंगे उनमें बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन जो है उन कैंडिडेट्स के लिए यस सिलेक्ट होगा। ऑप्शन में यस दबाएं अगर आप मैप्स का लाभ लेना चाहते हैं, अन्यथा नो चुनें। इसके अलावा संस्थानों को प्रत्येक अप्रेंटिस के नाम के आगे उनके अनधिकृत अवकाश बिना तो अनऑथराइज्ड लीव्स एंटर करने का ऑप्शन पहले भी पोर्टल पे था, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट अनऑथराइज्ड लीव्स एंटर करती थी फॉर ईच कैंडिडेट। अगर मान लीजिए उनके पेरोल में ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन मैनुअली फिल की जा सकती है फॉर ईच कैंडिडेट। इसके अलावा एक ऊपर ऑप्शन भी आता है फॉर बल्क पेरोल टेम्पलेट, जो आप ये देख सकते हैं डाउनलोड पेरोल टेम्पलेट। सो इस पेरोल के टेम्पलेट को डाउनलोड करके भी एस्टैब्लिशमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन जो नीचे दी गई है उसे फिल कर सकती है और उस टेम्पलेट को अपलोड कर सकती है, ताकि यही इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उनके लिए इस टेम्पलेट के थ्रू फिल हो गया है। ये टेम्पलेट यूजफुल इसलिए है कि जहां पे मान लीजिए किसी एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल में 200, 500 या 10,000 बच्चे हैं, तो उनके लिए मैनुअली इंफॉर्मेशन फिल करना शायद एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा लेंथी ओवर टाइम टेकिंग होगा। बट ये पेरोल टेम्पलेट ऑलरेडी उन सभी कैंडिडेट की डिटेल्स आपको देता है। इट इज दिस एस्टैब्लिशमेंट को उनकी अनऑथराइज्ड लीव्स जो हैं वो एंटर करनी होती है, ताकि पोर्टल बाकी की इंफॉर्मेशन जो है कैलकुलेट कर पाए, जो कि एस्टैब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन होगी डीबीटी रोल आउट के बाद और एमएसडी शेयर होगी। एंटर करने के लिए बल्क पेरोल टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। अप्रेंटिस को दी जाने वाली कुल राशि के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करें, जिससे कि पोर्टल संस्थानों ये सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन के बारे में आई होप आप सब अवेयर होंगे। इट इज जस्ट कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल करी है उसको पोर्टल पे रिफ्लेक्ट वो हो जाए एट ए टाइम, उसके लिए सेव एज ड्राफ्ट एस्टैब्लिशमेंट करती है। जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, ये वैसे काम करता है सेव एज ड्राफ्ट। और सरकार द्वारा कंट्रीब्यूशन की गणना कर पाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं और थोड़ा सा बैक करता हूँ। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ अपनी अनऑथराइज्ड लीव्स डाली थी और जो टोटल पेबल स्टाइपेंड जो वो कैंडिडेट्स को देना चाहते थे वो एंटर किया था और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक किया था। इसके बाद पोर्टल ने खुद कैलकुलेट करके एस्टैब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन को और डीबीटी कंट्रीब्यूशन को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है, जो कि सम है टोटल पेबल स्टाइपेंड का। तो ये कैलकुलेशन बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि उनको अगर डीबीटी में पार्टिसिपेट करना है, डीबीटी रोल आउट होने के बाद जब भी होता है 1 अप्रैल 2 अप्रैल, तो कैसे वो करेंगे पार्टिसिपेट। उनका पैन जीएसटी कंप्लीट है, उसके बाद जिस भी कैंडिडेट्स की पेरोल इंफॉर्मेशन वो फिल करते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स को वो एनरोल करेंगे उन सभी का ई-केवाईसी होना चाहिए। ई-केवाईसी होने के बाद जब पेरोल वाला स्टेप आता है तो पेरोल वाले स्टेप डीबीटी आपने केवल यस में सेलेक्ट करना है, अनऑथराइज्ड लीव्स एंटर करनी है हर एक कैंडिडेट्स के अगेंस्ट टोटल पेबल अमाउंट, क्योंकि कुछ एस्टैब्लिशमेंट जो है टोटल पेबल स्टाइपेंड जो स्टाइपेंड पेबल है उससे भी ज्यादा कुछ स्टाइपेंड अगर कैंडिडेट को पे करती है, तो इसलिए ये सेक्शन है यहाँ पे जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली पोर्टल आपके शेयर को 2 हिस्सों में स्प्लिट करेगा, ठीक है, मैनुअली कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब फ्रीज पेरोल बटन पर क्लिक करें और पेमेंट बैचेस बनाएं। पेमेंट बैच सिलेक्शन के अब देखिए पेमेंट बैचेस का क्या रोल होता है। मे भी बहुत सारे आरटीएससी स्टिपुलेट्स हैं, वो ऑलरेडी ये क्लैरिटी होगी। पेमेंट बैच इट इज जस्ट, मान लीजिए पेरोल में जैसे कि 1000 बच्चे हैं, जिसमें से एस्टैब्लिशमेंट 200 को एक डिफरेंट डेट पे पे करती है, बाकी के कैंडिडेट्स को डिफरेंट डेट पे पे करती है। तो वो अपने पेरोल में से ही वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके बैचेस में भी कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं। के बाद प्रोसेस पेमेंट पर क्लिक करें ताकि स्टाइपेंड का भुगतान हो पाए। 1 जनवरी 2023 से सभी पेरोल का भुगतान अप्रेंटिसशिप गेटवे से करना अनिवार्य। ओके, डेट्स फिलहाल के लिए आप प्लीज इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोटे साहब के शादी का अब गेटवे से पेमेंट करना मैंडेटरी है डीबीटी रोल आउट होने के बाद। अगर किसी भी कैंडिडेट्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट में डीबीटी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती है तो है और भुगतान के अन्य ऑफलाइन विकल्प स्थगित हो जाएंगे। संस्थानों को ध्यान रखना होगा कि उनके वैन अकाउंट में प्राप्त बैलेंस मौजूद हो, जिससे अप्रेंटिसेस का भुगतान बिना परेशानी के समय पर हो सके। एक बार भुगतान होने के बाद स्टेटस पेड दिखेगा।
संस्थानों के लिए किसी तरह की अप्रूवल अनिवार्य नहीं है। भुगतान हो जाने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कृपया ध्यान दें, 1 जनवरी 2023 के बाद सभी नैप्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्ट अगेन ये डेट जो है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने ये रोल आउट किया जरूर था, बट फिर से रोल बैक कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रीज को, एस्टैब्लिशमेंट्स को ई-केवाईसी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने उन एस्टैब्लिशमेंट को, उन सभी कैंडिडेट्स का ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए 31 मार्च तक का टाइम दिया है। और इन पैरेलल जो भी डीबीटी को लेके और इम्प्लीमेंटेशन है जो हम करना चाहते थे फेज 2 में, वो भी मे बी 1 अप्रैल से लाइव हो सके। फिर ट्रांसफर अनिवार्य है। टेक्निकल सपोर्ट जो यूज होता है टिकटिंग के लिए, जहां पे कोई भी कैंडिडेट एस्टैब्लिशमेंट, इवन आप भी जाके अगर आपकी मान लीजिए डैशबोर्ड में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई चीज आपको नहीं दिख रही है, कोई बग आ रहा है, तो आप सिंपली टिकट रेज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ही एम्बेड है। मैं फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे गए, ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल का होम पेज है। आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे, पीएम नाम रजिस्ट्रेशन, अप्रेंटिसशिप मेला, कैंडिडेट लॉगिन और एक टेक्निकल सपोर्ट। जैसे आप इस टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो ओपन होगी। ओके, सो ऑलरेडी मैंने क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया, मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। सो ये पेज आपको विजिबल होगा सबसे पहले जब आप टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो एक बार आपको साइन अप करना होगा वन टाइम, जहां पे आप अपनी ईमेल आईडी और ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करके साइन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी यूज करनी है जिसपे आप अपनी ईमेल्स भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से जो है आपको ईमेल नोटिफिकेशंस भी जाती हैं कि आप ही ईमेल्स पे ट्रैक कर पाएं कि आपके टिकट्स की क्या प्रोग्रेस है। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से इस तरह के इश्यूज या टिकट्स जो भी थे हैंडल हो रहे थे, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने सिंपली नाम का एक टूल यूज किया होगा, या ईमेल्स पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आप एक यूजर से दूसरे यूजर को शेयर कर देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वो सभी कम्युनिकेशन आपके लिए इजी कर देता है, जहाँ पे अंडर अ सिंगल डैशबोर्ड आप अपने सभी टिकट्स को ट्रैक कर सकते हो, उनकी क्या प्रोग्रेस है, आर दे रिजॉल्व, आर दे पेंडिंग, ठीक है, आर दे क्लोज्ड, अगर वो क्लोज्ड अगेन उन पे कोई एक्शन हुआ है नहीं हुआ। सिंपली साइन अप करने के बाद अगेन ये प्लेटफॉर्म भी आपको एक एक्टिवेशन लिंक भेजता है टू ऑथेंटिकेट कि क्या आप जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली आप साइन अप करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैं अपने क्रेडेंशियल से साइन अप करता हूं। तो साइन इन करने के बाद आप माई ए पे जाके भी टिकट रेज कर सकते हैं। एड अ टिकट, यहाँ पे होम पेज पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, सबमिट अ टिकट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्किल इंडिया पोर्टल और अप्रेंटिसशिप नैप सपोर्ट। अप्रेंटिसशिप नैप सपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है, सबमिट अ टिकट पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं नाउ। सो हम यूजर से पहले ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि उस टिकटिंग की मार्केटिंग और उस टिकट को कनेक्ट किया जाए सही यूजर से जो उस पर काम कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, क्या ट्रिपल ए है, बीटीपी है, कैंडिडेट है, डीजीटी, एस्टैब्लिशमेंट, एनएससीसी। सो ऑलरेडी हमने जितने यूजर हो सकते थे पॉसिबली वो सभी मैप किए। तो सपोज आप एक कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपकी क्वेरी जो है ऑप्शनल डेजिग्नेटेड, सो माइट बी कैंडिडेट अगर नहीं अवेयर होता है कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, वो बैकएंड पे फिर अगेन कैंडिडेट के इश्यूज के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे टिकटिंग की बकेटिंग हो सकती है। अब कैंडिडेट्स लेवल पे क्या क्या इश्यूज जो आते हैं पॉसिबल, वो सभी यहाँ पे एम्बेडेड है ड्रॉप डाउन में। एआईटीटी कॉन्ट्रैक्ट है, बीटी है, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है। सो इसमें से कैंडिडेट मान लीजिए सिलेक्ट करता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, उसके बाद कैंडिडेट एक सब्जेक्ट डालेगा अनेबल टू कंप्लीट ई-केवाईसी फॉर एग्जांपल। उसके बाद मान लीजिए कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट लिखना चाहता है डियर सर अनेबल टू कंप्लीट ई-केवाईसी या टेस्ट। इसके बाद कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन भी मिलता है, या सभी यूजर्स को एक ऑप्शन मिलता है एक फाइल अटैच करने का, वो कोई भी एक फाइल अटैच कर सकते हैं। टेस्ट बेसिस में आपको एक फाइल अटैच करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो भी एरर के स्क्रीनशॉट्स होते हैं ज्यादातर जो हेल्प करते हैं टीम को अंडरस्टैंड करने में कि क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है, तो वो फाइल्स यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। और जैसे ही सबमिटेड टिकट पे आप क्लिक करेंगे
कि ये यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई है। जैसे मैं सबमिट टिकट पे क्लिक करूँगा तो एक टिकट जनरेट हो जाएगा। मैं आपको एक टिकट जनरेट करके भी दिखा देता हूँ, एक टेस्ट टिकट। जैसे आप सबमिट टिकट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको पॉपअप आएगा, योर टिकट हैज बीन क्रिएटेड। अब आप अपने सारे टिकट्स इस माई एरिया में जाके ट्रैक कर सकते हैं। आपने एक टेस्ट टिकट क्रिएट किया था, आपको डेट्स दिख रही है, आपको उसका स्टेटस दिख रहा है, ये टिकट का स्टेटस है। अभी तक टीम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जैसे टीम रिस्पॉन्स करेगी, यहाँ पे आप एक ट्रेल देख सकते हैं, एक ट्रेल क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे आपके ओपन टिकट्स, क्लोज टिकट्स, होल्ड टिकट्स भी हैं। ये सारे मेरे क्लोज टिकट्स हैं जो भी मैंने पास में डाले थे। इस पे टीम ने रिप्लाई किए थे 3 या 4, किसने टिकट्स को हैंडल किया था, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप भी इस तरीके से, मान लीजिए कैंडिडेट्स हैं, आप ही को कोई प्रॉब्लम आ रही है एज एस्टैब्लिशमेंट, एज अ कैंडिडेट, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो नाउ अभिषेक जी, पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी पुष्पेंद्र, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई ऑफिस मेमोरेंडम निकल जाए, डीबीटी में एडवांस में पैसा जो है ना वेन अकाउंट में डाल सकें वो। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस ऑर्डर के बाद अपना काम इम्प्लीमेंट करती हैं वो। डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र में अप्रेंटिस गेटवे ही सेलेक्ट करना है और अप्रेंटिस गेटवे में तो वैन अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। ये अभी आज क्लियर हुआ, अभी इस वीसी में क्लियर हो गई ये बात। ये नहीं समझ पा रही कि वैन अकाउंट में कैसे पैसे ऐड करने हैं। नहीं, वो तो जानती है। एक सिंगल चेक बना के वैन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे वो। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है सर। डाल दिया ना सर। हाँ जी,